بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم۔ میں آپ سے ایک ایسے وقت پر مخاطب ہوں جب پاکستان دو محاذوں پر نہایت ذمہ داری کے ساتھ اہم ترین کردار ادا کر رہا ہے۔ ایک طرف ہم اپنے قومی مفادات کے تحفظ اور عوام کو عالمی منڈیوں میں تیل کی قیمتوں میں قیامت خیز اضافے سے بچانے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں، تو دوسری جانب سفارتی محاذ پر امن کے قیام کے لیے دن رات متحرک ہیں۔ اس جنگ کو رکوانے کے لیے پاکستان سفارتی سطح پر ثالثی کی بھرپور اور پرخلوص کوششیں کر رہا ہے تاکہ خطہ اور برادر اسلامی ممالک تباہ کن جنگ اور اس کے منفی اثرات سے نجات پائیں اور اجتماعی مشاورت اور دانش مندی سے پائیدار امن کی راہ ہموار ہو سکے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، پاکستان کی سفارتی کوششیں محض ایک بین الاقوامی سفارتی ذمہ داری نہیں، بلکہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا اور امت مسلمہ کے بہترین مفاد کے لیے ہیں۔ ہم سب ایک خدا، ایک رسول اور ایک قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، اس لیے خواہ کوئی کسی بھی مکتبہ فکر یا مسلک سے تعلق رکھتا ہو، بطور مسلمان سب کے دل میں امن کی تمنا یکساں ہے۔ اسی تناظر میں نے متعدد مرتبہ ایران اور خلیجی ممالک کے سربراہان کے ساتھ تفصیلی گفتگو کی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب پوری محنت اور خلوص کے ساتھ ان کاوشوں میں مصروف عمل ہیں۔ فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر اس مفاہمتی عمل کی کامیابی کے لیے نہایت فعال اور کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ ان کاوشوں کی کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا فرمائیں۔ میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، دنیا اس وقت ایک غیر معمولی اور مشکل ترین صورتحال سے نبرد آزما ہے، جہاں بڑی بڑی معیشتیں بے بسی کی خاموش تصویر بنی ہوئی ہیں۔ ترقی یافتہ ممالک جن کے پاس وسائل کے انبار ہیں، آج وہ بھی شدید معاشی بحران کا سامنا کر رہے ہیں۔ ایسے حالات میں اس بات کا اندازہ لگانا کوئی مشکل کام نہیں کہ پاکستان پر اس معاشی بوجھ کے کیا اثرات مرتب ہو سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے اس طوفان کا مقابلہ کرنے کے لیے پہلے ہی سے تیاری شروع کر رکھی تھی۔ لہٰذا ہم نے فوری طور پر وہ فیصلے کیے جو ہرگز آسان نہیں تھے۔ ترقیاتی منصوبوں کے لیے مختص بجٹ میں 100 ارب روپے کی کٹوتی اور سادگی اور کفایت شعاری کی مہم سے ایک ایک پیسہ بچا کر اربوں روپے عام آدمی پر معاشی دباؤ کم کرنے کے لیے وقف کر دیے، تاکہ تاریخ کی اس مشکل گھڑی میں جہاں تک ممکن ہو سکے آپ کی حکومت عوام کو ان مشکلات سے بچانے کے لیے حد المقدور
वसाइल आपके कदमों में निछावर करे। मेरे बुजुर्गों, भाई और बहनों, आप पर यह हकीकत अच्छी तरह आश्कारा हो चुकी होगी कि आज जब आप अपनी गाड़ी या मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाते हैं तो हर एक लीटर के पीछे हुकूमत की बचत की पॉलिसियाँ और एहसास ज़िम्मेदारी की झलक मौजूद होती है। मेरे बुजुर्गों, भाई और बहनों, ये हफ्ता जो आज से शुरू हो रहा है, इसमें भी मुझे पेट्रोल पर फी लीटर 95 रुपये और डीजल पर फी लीटर 203 रुपये इजाफा करने की तजवीज़ दी गई है, जिसे मैंने आपकी मुश्किलात के पेश नज़र एक बार फिर मुस्तरद कर दिया है। और ये बोझ वफाकी हुकूमत ने एक मरतबा फिर खुद उठाने का फैसला किया है और इसका हुज्म 56 अरब रुपए बनता है। यानी इस हफ्ते में मज़ीद 56 अरब रुपए का इजाफी बोझ वफाकी हुकूमत खुद बर्दाश्त करेगी और आपको ये बोझ नहीं उठाना पड़ेगा। मेरे बुजुर्गों, भाई और बहनों, आलमी मंडी में कीमतें देखी जाएं, आज के दिन पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत 544 रुपये फी लीटर होनी चाहिए थी, लेकिन आप इसे सिर्फ 322 रुपये में हासिल कर रहे हैं। इसी तरह डीजल की कीमत भी आज के दिन पाकिस्तान में 790 रुपये फी लीटर होनी चाहिए थी, लेकिन हुकूमत आपको डीजल सिर्फ 335 रुपये फी लीटर फराहम कर रही है, ताकि आप पर मज़ीद बोझ ना पड़े और आपकी मुश्किलात में मज़ीद इजाफा ना हो। मेरे बुज़ुर्गों, भाई और बहनों, कीमतों के ये अदाद व शुमार सुनने में, गुफ्तगू करने में शायद गिनती लगते हों, लेकिन हकीकत में मतवातर 3 हफ्तों के अंदर 125 अरब रुपए का ये तारीखी बोझ आपकी हुकूमत ने अपने कंधों पर उठाया है, ताकि आपके कंधे इस बोझ से ना झुकने पाएं और ये खतीर रकम आपकी फलाह के कई बड़े मंसूबों की तामीर के लिए इस्तेमाल हो सकती थी। लेकिन इस लम्हे मुझे आपकी माशी तहफ़्फ़ुज़ से ज़्यादा और कुछ अजीज़ नहीं। मेरे बुज़ुर्गों, भाई और बहनों, आज वो लम्हा आ चुका है कि हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इनकलाबी तब्दीलियाँ फिलफौर लेकर आएं। सफ़र करने से पहले सोचें कि क्या यह सफ़र ज़रूरी है, क्या हर बार गाड़ी या मोटर बाइक को निकालना ज़रूरी है। मेरे अज़ीज़ अहले वतन, कफ़ायत शारी अब इख्तियारी नहीं बल्कि हमारी मुश्तरका ज़िम्मेदारी बन गई है। दुनिया भर के ममालिक में कीमतें 2 गुना हो चुकी हैं और वहाँ पर पेट्रोल पंप्स पर आवाम की लंबी लाइनें लग चुकी हैं और कीमतें आवाम के बस से बाहर और वो हुकूमतें बेबस हो चुकी हैं। लेकिन
آپ کی حکومت نے اپنے انتہائی محدود وسائل کے باوجود بروقت اور مؤثر اقدامات سے مہنگائی کے اس طوفان کو اب تک آپ تک پہنچنے سے روک رکھا ہے۔ لیکن میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، یہ جدوجہد حکومت اکیلی نہیں کر سکتی، میں اکیلا نہیں کر سکتا۔ لہٰذا آج میری آپ سے ایک ہمدرد کے طور پر پرخلوص درخواست ہے کہ اس مشکل وقت کا مقابلہ کرنے کے لیے جو جامع منصوبہ ہم بنا رہے ہیں، اس میں بھرپور تعاون کریں، جس کا اعلان انشاءاللہ آئندہ چند دنوں میں کیا جائے گا۔ عزیز اہل وطن، اللہ تعالیٰ کے بے پایاں فضل و کرم اور قوم کے باہمی اتحاد و تعاون سے ہم اس طوفان بلاخیز سے سرخرو ہو کر نکلیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے وطن کو تا قیامت عزت اور وقار کے ساتھ سلامت رکھے اور امن کی کوششوں میں پاکستان کو کامیابی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا، وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے نکلے گا۔ پاکستان پائندہ باد۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا قوم سے خطاب۔ انہوں نے کہا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی تجاویز مسترد کر دیں۔ وفاقی حکومت 56 ارب روپے کا اضافی بوجھ برداشت کر رہی ہے۔ حکومت نے 125 ارب روپے کا بوجھ اپنے کاندھوں پر اٹھایا ہے۔ ڈائریکٹر پی ٹی وی نیوز ڈاکٹر ہارون الہی طور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہارون طور صاحب، وفاقی حکومت نے 56 ارب روپے کا بوجھ اپنے سر لیا ہے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ نہ کر کے۔ اس وقت یہ فیصلہ کتنا اہم ہے خطے کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے؟ جی بالکل، وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے قوم سے خطاب میں بڑے ریلیف کا اعلان کیا ہے اور پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں جو بڑا اضافہ ہونے جا رہا تھا اس کی اوگرا کی تجویز جو ہے مسترد کر دی ہے، جس کے تحت پیٹرول جو ہے وہ 95 روپے اور ڈیزل جو ہے وہ 203 روپے فی لیٹر تک اضافہ ہونا تھا۔ جو عالمی منڈی کی قیمتیں ہیں ان کے مطابق، تاہم وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے عوام کو ریلیف دینے کے لیے اور ملک کی معیشت کو بہتر سمت میں رکھنے کے لیے یہ ایک اہم قدم اٹھایا ہے، جس کے تحت 56 ارب روپے جو ہے اس کا بوجھ حکومت خود برداشت کرنے جا رہی ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے قوم سے اپنے اہم ترین خطاب میں جو خطے کی صورتحال ہے اس پر بھی روشنی ڈالی اور جو اس وقت چیلنجز کا سامنا ہے ملک کو ان کا بھی تفصیل سے ذکر کیا اور واضح کیا کہ پاکستان اس وقت جو ہے وہ 2 محاذوں پر اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ ایک طرف تو حکومت کے لیے جو سب سے بڑا محاذ ہے وہ ہے عوام کو ریلیف فراہم کرنا، جس کے تحت پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں جو ہیں اس وقت خطے کے ملکوں کے مقابلے میں کم ترین سطح پر رکھی جا رہی ہیں۔ دوسری طرف ساتھ ہی ساتھ ایک اور محاذ پر بھی پاکستان لیڈنگ رول پلے کر رہا ہے اور وہ خطے میں قیام امن کے لیے پاکستان کی کوششیں ہیں، پاکستان کا کردار ہے، جسے آج پوری دنیا تسلیم بھی کرتی ہے اور اس کا اعتراف بھی کر رہی ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم ایک اور محاذ پر بھی کام کر رہے ہیں کہ امت مسلمہ کے اتحاد کے لیے پاکستان اپنا مؤثر کردار ادا کرتا رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں امن ہو۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار جو ہیں وہ مفاہمت کے لیے بھرپور انداز میں کام کر رہے ہیں اور معاملات کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ انہوں نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے حوالے سے بھی واضح کیا کہ وہ بھی اس حوالے سے اپنا بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے واضح کیا کہ جو اس وقت دنیا کو مشکل ترین صورتحال ہے اس میں بڑی بڑی معیشتیں جو ہیں
وہ مشکل کا شکار ہیں اور بھونچال کا شکار ہیں، اور اس بحران کے سامنے خاموش تصویر بنی ہوئی ہیں. تاہم پاکستان جو ہے وہ مسلسل آگے بڑھ رہا ہے. جی ہارون صاحب، اس ہفتے جو تجویز دی گئی تھی وہ تھی 95 روپے پیٹرول اور 203 روپے ڈیزل مہنگا کرنے کی، جس کو وفاقی حکومت نے مسترد کیا. ایکسپیکٹڈلی کتنا عرصہ سسٹین کیا جا سکتا ہے موجودہ قیمتوں کو برقرار رکھتے ہوئے، کیونکہ خطے کی صورتحال اس وقت ہم سب کے سامنے ہے، ابھی جنگ بندی کے امکانات نظر نہیں آ رہے فوری طور پہ، تو کتنے دن تک ہم ان قیمتوں کے ساتھ سروائیو کر سکتے ہیں؟ عظیم ڈاکٹر ہارون الہی طور صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اس پر بات کر رہے تھے. وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی جانب سے قوم سے آج خطاب کیا گیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ پوری دنیا میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں دگنا ہو گئیں. پاکستان 2 محاذوں پر اہم کردار ادا کر رہا ہے. عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے کوشاں ہیں. پاکستان خطے میں قیام امن کے لیے اپنا کردار ادا کر رہا ہے. امت مسلمہ کے اتحاد کے لیے پاکستان اپنا بھرپور کردار ادا کر رہا ہے. پاکستان دنیا بھر میں امن کا خواہاں ہے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار مفاہمت کے لیے بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. دنیا مشکل ترین صورتحال سے نبرد آزما ہے. بڑی بڑی معیشتیں خاموش تصویر بنی ہوئی ہیں. دنیا کی بڑی معیشتوں کو بھی بحران کا سامنا ہے. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے قوم سے خطاب میں کہا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم نے چیلنجز کا بھرپور مقابلہ کیا ہے اور کر رہے ہیں. سادگی اور کفایت شعاری کی مہم سے ایک ایک پیسہ بچا کر عام آدمی کو ریلیف دینے پر خرچ کیا. اس حوالے سے مزید بات کر لیتے ہیں. ہمارے نمائندہ مظہر عباس ہمیں جوائن کر چکے ہیں. مظہر، آج وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے قوم سے خطاب کیا ہے، اس حوالے سے اپڈیٹ کیجیے گا. جی، وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے اس وقت جو مشرق وسطیٰ کی صورتحال ہے اور جو دنیا کی صورتحال ہے اس حوالے سے ایک اہم خطاب جو ہے وہ آج قوم سے کیا ہے. اور وزیر اعظم نے قوم کو اعتماد میں لیتے ہوئے قوم کو بتایا کہ پاکستان کو اس وقت جن مسائل کا سامنا ہے، پاکستان ایک تو 2 محاذوں پر اس وقت جو ہے وہ دنیا بھر میں اہم کردار ادا کر رہا ہے. پہلا محاذ جس میں مشرق وسطیٰ میں جو جنگ اس وقت جاری ہے، اس میں جو ثالثی کے کردار کے حوالے سے پاکستان کی کاوشیں ہیں، اس حوالے سے پاکستان کا کردار بہت اہم ہے. اور دنیا میں پاکستان جو ہے اس وقت قدر کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے، کیونکہ کسی بھی ملک میں جنگ کی صورتحال ہو یا مشرق وسطیٰ میں جنگ ہو خاص طور پر، تو پوری دنیا میں اس کا اثر ہوتا ہے، کیونکہ پیٹرولیم مصنوعات کی ضرورت پوری دنیا کو ہوتی ہے. اسی حوالے سے پھر وہاں اگر کسی قسم کی کوئی جنگ ہوتی ہے تو اس کے اثرات پوری دنیا پہ آتے ہیں. اور پاکستان اس حوالے سے جو ہے ثالثی کے کردار کے حوالے سے اپنی کاوشیں جاری رکھے ہوئے ہیں. اور دوسرا، ان حالات کے باوجود جو عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے جو کوششیں ہیں حکومت کی طرف سے اور جو اقدامات ہیں، اس پر وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے جو ہے وہ قوم کو بتایا کہ عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے حکومت اپنے اس میں رہتے ہوئے جو ہے وہ اقدامات کر رہی ہے اور عوام کو ریلیف دینے کے لیے زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ کاوشیں کی جا رہی ہیں. وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان خطے میں قیام امن کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کر رہا ہے. امت مسلمہ کے اتحاد کے لیے پاکستان کو جو کردار ہے اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے. پاکستان دنیا بھر میں امن کا خواہاں ہے. نائب وزیر اعظم جو ہے وہ سفارتی محاذ پر جو ہے وہ خطے میں امن کے حوالے سے بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی اپنا جو ہے وہ بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں. دنیا جو ہے وہ مشکل ترین صورتحال سے اس وقت گزر رہی ہے. بڑی بڑی معیشتیں خاموش تصویر بنی بیٹھی ہیں. دنیا کی بڑی معیشتوں کو بحران کا سامنا ہے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان میں جو بہتر حکومت کی طرف سے بہتر اقدامات کی وجہ سے جو ہے وہ ہم اس چیلنج کا جو ہے وہ جو مختلف چیلنجز درپیش ہیں اس وقت، معاشی چیلنج ہو یا جو ہے سفارتی محاذ پر چیلنج ہو، اس کا بھرپور جو ہے وہ پاکستان مقابلہ کر رہا ہے. اور ہم نے فیصلہ کیا تھا سادگی اور کفایت شعاری مہم کا، اور اس حوالے سے ایک ایک پیسہ بچا کر عام آدمی کو ریلیف دینے پر خرچ کیا جا رہا ہے. وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت کو عوامی مسائل کا بخوبی ادراک ہے. جی مظہر، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا. وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی جانب سے قوم کے خطاب کے دوران پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں جو تجویز پیش کی گئی تو اس کو مسترد کیا گیا اور عوام کو ریلیف دینے کے لیے ایک اہم فیصلہ کیا گیا ہے. اپنے ناظرین کو ایک بار پھر سے سنواتے ہیں. حکومت کی بچت کی پالیسیاں اور احساس ذمہ داری کی جھلک موجود ہوتی ہے. میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، یہ ہفتہ جو آج سے شروع ہو رہا ہے، اس میں بھی مجھے
पेट्रोल पर फी लीटर 95 रुपए और डीजल पर फी लीटर 203 रुपए इजाफा करने की तजवीज़ दी गई है, जिसे मैंने आपकी मुश्किलात के पेश नज़र एक बार फिर मुस्तरद कर दिया है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का कौम से खिताब आपने एक बार फिर से मुलाहिज़ा किया। मज़हर अब्बास हमारे साथ ही मौजूद हैं। मज़हर, बड़ा अहम ऐलान किया गया है वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से, कौम को एक बड़ा रिलीफ मिला है इससे। जी, वजीर आजम को जो वजीर आजम ने आज आवाम को रिलीफ दिया है वो काबिल तारीफ है। इस हवाले से वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ को इसी हफ्ते जो है वो समरी भेजी गई थी, जो है वो सिफारिश की गई थी कि इस हफ्ते पेट्रोल 95 रुपए और डीजल 203 रुपए फी लीटर जो है वो बढ़ाया जाए। लेकिन वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की तजावीज़ को मुस्तरद कर दिया और आज जो है उन्होंने ऐलान किया है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो है वो पिछली कीमतों पर जो है वो उसी तरह ही रहेंगी। पाकी हुकूमत, वजीर आजम ने बताया आवाम को कि पाकी हुकूमत 56 अरब रुपए का इजाफी बोझ जो है पेट्रोलियम मसनूआत का वो इस हफ्ते बर्दाश्त करेगी और जो है वो हुकूमत की तरफ से 125 अरब रुपए जो है वो अब तक जो है इस हफ्ते समेत वो आवाम को रिलीफ दिया जाएगा, जो कि हुकूमत के अपने कंधों पर ये बोझ पड़ेगा 125 अरब रुपए का। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत ये कोशिश कर रही है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आवाम को जो है वो रिलीफ दिया जा सके। वज़ीर आज़म ने कहा कि कौम से कहा कि सफ़र करने से पहले जो है सोचें कि अगर ज़रूरी है तो करें, नहीं तो सफ़र करने से इज्तनाब करें। किफ़ायतशारी अब हमारी मुश्तरका ज़िम्मेदारी बन गई है। पूरी दुनिया में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें दुगना हो चुकी हैं। दुनिया जो है वो कीमतें आवाम की पहुँच से बाहर हैं और हुकूमतें जो है वो पूरी दुनिया में बेबस हो चुकी हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि आवाम को हुकूमत के साथ मिलकर किफ़ायतशारी मुहिम को कामयाब बनाना होगा। मुश्किल वक्त का मुकाबला करने के लिए जामे मनसूबाबंदी जो है वो हुकूमत पाकिस्तान कर रही है। आवाम हुकूमत से किफ़ायतशारी मुहिम में ताउन करें। कौम के बाहमी इत्तेहाद और ताउन से मुश्किल हालात से सुरखरू होकर निकलेंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने आवाम से कहा कि किफ़ायतशारी मुहिम अपनाएं और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है वो पेट्रोलियम मसनूआत की जो उनकी खपत है उससे ज़्यादा से ज़्यादा जितना बचा जा सकता है उससे बचें। जी सही। मज़हर, आप हमारे साथ ही मौजूद हैं, इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं। नाज़रीन, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से कौम से खिताब के दौरान ये भी बताया गया कि इस तरह से ये कीमतों और इस तजावीज़ को मुस्तरद करना आसान नहीं था। हुकूमत ने ये तमाम तर बोझ खुद बर्दाश्त किया है। वफाकी हुकूमत 56 अरब रुपए का इजाफी बोझ बर्दाश्त कर रही है। इस फैसले के लिए हुकूमत ने 125 अरब रुपए का बोझ अपने कांधों पर उठाया है ताकि अवाम को ये रिलीफ दिया जा सके। वज़ीर आज़म ने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। मुरतब हो सकते थे, लेकिन अल्लाह ताला के फज़ल व करम से हमने इस तूफ़ान का मुकाबला करने के लिए पहले ही से तैयारी शुरू कर रखी थी। लिहाजा हमने फौरी तौर पर वो फैसले किए जो हरगिज़ आसान नहीं थे। तरक्याती मंसूबों के लिए मुख्तस बजट में 100 अरब रुपए की कटौती और सादगी और किफ़ायतशारी की मुहिम से एक एक पैसा बचाकर अरबों रुपए आम आदमी पर माशी दबाव कम करने के लिए वक्फ कर दिए। नाज़रीन, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कौम से खिताब किया और अवाम को ये रिलीफ की खुशखबरी दी। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने 125 अरब रुपए का बोझ अपने कांधों पर उठाया है। मज़हर हमारे साथ ही मौजूद हैं। मज़हर, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कौम से खिताब के दौरान ये तो खुशखबरी दी कि किसी किस्म का बोझ अवाम पर नहीं डाला जा रहा, तमाम तर बोझ हुकूमत खुद बर्दाश्त करेगी। लेकिन वज़ीर आज़म की जानिब से अवाम से भी दरख्वास्त की गई है कि कुछ हिदायत उन पर अमल दरामद किया जाए, गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज किया जाए। वो हिदायत क्या है, ये भी अपडेट कीजिएगा।
जी, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अवाम से अपील की कि वो कम से कम पेट्रोलियम मसनूआत पर जाएँ और ज़्यादा सफ़र से गुरेज़ करें। अगर सफ़र ज़रूरी है तो फिर तो ठीक है, नहीं तो फिर सफ़र से गुरेज़ किया जाए। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि मुश्किल वक़्त है, इसमें जो है सब ने मिलकर जो है वो आगे बढ़ना है और अवाम जो है, कौम जो है वो मिलकर हुकूमत का साथ दे, ताकि इस मुश्किल वक़्त से जो है वो सुरखरू होकर निकला जा सके। क्योंकि इस वक्त दुनिया की जो सूरत हाल है, बहुत बहुत बड़े-बड़े ममालिक जो हैं वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से जो है वो इस वक्त जो है वो बिल्कुल उनकी हुकूमतें बेबस हो चुकी हैं। हुकूमत जो है वो बर वक्त इक़दामात कर रही है। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जो वज़ीर आज़म के हिदायत पर जो इक़दामात किए जा रहे हैं, जिसमें किफ़ायतशारी मुहिम शामिल है और मुख्तलिफ इदारे भी इस वजह से हफ्ते में 2 या 3 दिन काम जो है वो ऑफिसेज जा रहे हैं, ताकि गाड़ियों का जो ईंधन है वो कम से कम इस्तेमाल हो और जो है वो इदारों के काम भी होते रहे। वज़ीर आज़म ने इस हवाले से जो इक़दामात हुकूमत ने जो इक़दामात किए वो काबिल तारीफ भी हैं, क्योंकि किफ़ायत शारी की वजह से ही आज जो है ये मुमकिन हो पाया है कि वज़ीर आज़म ने आज जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं उनमें इजाफे की तजावीज़ मुस्तरद की हैं। हुकूमत की वजह से जो बाकी हुकूमत है वो इस वक्त मैं आपको बताऊं कि 125 अरब रुपए जब से ये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है, हुकूमत ने 125 अरब का बोझ जो है वो अपने कंधों पे बर्दाश्त किया है और तरक्याती जो फंड्स थे उनमें कट लगाकर जो है वो हुकूमत आवाम को रिलीफ देने के लिए जो है वो कोशिशें कर रही है। और इस वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने आवाम से इसी वजह से जो है वो अपील की है कि किफ़ायत शारी को अपनाएं और गैर ज़रूरी सफ़र और गैर ज़रूरी जो है वो ट्रैवल से गुरेज करें। जी। अच्छा मजहर, वज़ीर आज़म की जानिब से एक अहम फैसला किया गया है और हुकूमत वक्त जो है वो अवाम को हर मुमकिन रिलीफ देने की कोशिश कर रही है। अभी आज भी पीएम की जानिब से जो है वो हिदायत जारी की गई हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि ज़रा जब से खित्ते की सूरत हाल ख़राब हुई है, जब से तवानाई का बहरान पैदा हुआ है, हुकूमत की जानिब से, खासतौर पर वफाकी हुकूमत की जानिब से क्या क्या अहम फैसले किए गए हैं, अवाम के लिए क्या क्या SOPs तय किए गए? जिस तरह से स्मार्ट लॉकडाउन की भी बात हो रही थी, दफातर के जो औकात कार है वो भी तब्दील किए गए। मैं चाहूँगा हमारे नाज़रीन के लिए आप एक बार वो तमाम तरह हिदायत दोबारा से दोहराइएगा, ताकि अवाम तक भी ये मैसेज दोबारा पहुँच सके कि उन्होंने किन किन एहतियाती तदाबीर अमल दरामद करना है ताकि तवानाई के बहरान से निपटा जा सके। जी, दुनिया भर में इस तरह होता है कि जब जंगें लगती हैं तो उस खित्ते के जो मसाइल हैं उनमें इजाफा होता है और उस खित्ते में चैलेंजेस जो है वो बढ़ जाते होते हैं। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जब से ये जंग शुरू हुई है और पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा हुआ है, तो हुकूमत की जानिब से जो इक़दामात किए गए या पंजाब हुकूमत की जानिब से जो इक़दामात किए गए, पूरे पाकिस्तान में जो मुख्तलिफ हुकूमतें हैं मुख्तलिफ सूबों में उनकी तरफ से जो इक़दामात किए गए तवानाई को बचाने के हवाले से, वो जो है वो खुशाइन थे और इसी वजह से जो है वो हुकूमत के इन बर वक्त इक़दामात की वजह से जो है वो पाकिस्तान जो है वो आगे बढ़ रहा है और ज़ाहिर है दुनिया मुश्किल तरीन सूरत हाल से नबरदाज़मा है और बड़ी बड़ी मईशतें इस हवाले से खामोश तस्वीर जो है वो बनी बैठी हैं। तो हुकूमत के जो इक़दामात हैं इनमें जो तालीमी इदारे हैं वो भी बंद कर दिए गए ताकि तवानाई को बचाया जा सके और इस तरह से बहुत सारे जो और भी इक़दामात हैं, जैसे दफातर के औकात कार जो है वो कम कर दिए गए। दफातर में जो है वो 2 दिन के लिए या 3 दिन के लिए जो है वो दफातर खोले जाएंगे और बाकी घर से बैठकर काम किया जाएगा, ये भी फैसला था। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की हिदायत पर जो है वो मुख्तलिफ दफातर के जो ट्रांसपोर्ट्स थी उनमें भी कमी की गई और ताकि तवानाई को बचाया जा सके। इस तरह से हुकूमत के बेशबहा इक़दामात हैं जो है वो इस जंग के दौरान जो है वो हुकूमत ने लिए और उसी वजह से जो है वो आज पाकिस्तान के बादशाही की मुहिम पर चलने के बाद जो है इस चैलेंज से भरपूर तरीके से मुकाबला कर रहा है। जी।
अच्छा मसर, इससे पहले भी हमने देखा कि गुज़िश्ता रोज़ भी ये खिताब किया गया था वज़रा की जानिब से, वफाकी वज़रा की जानिब से कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि अभी तक हमारे पास तेल के ज़खायर इतने मौजूद हैं कि हम अप्रैल तक तमाम तर अपने बहरान पर काबू पा सकते हैं। एक तो ये क्या खबर है, इस पर अपडेट कीजिए, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि हम वज़ीर आज़म के खिताब के साथ साथ अवाम तक ये भी पैगाम पहुँचा सकें कि किसी किस्म की सूरत हाल ऐसी नहीं है कि जिसमें परेशान हुआ जाए। वफाकी हुकूमत और हुकूमत वक्त इस वक्त तमाम तर बोझ खुद बर्दाश्त कर रही है ताकि अवाम तक रिलीफ पहुँच सके। वफाकी वज़रा की जानिब से भी और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत एक इजलास भी हुआ था, जिसमें ये वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को ब्रीफिंग में बताया गया था कि पाकिस्तान में तवानाई के हवाले से अप्रैल तक पाकिस्तान की जो ज़रूरियात हैं पेट्रोलियम मसनूआत की, वो अप्रैल तक जो है वो पूरी हैं। इस हवाले से पाकिस्तान ने बर वक्त इक़दाम किए थे और पाकिस्तान के पास जो है वो अप्रैल तक के ज़खायर मौजूद हैं। और मजीद अगर ये जंग तूल पकड़ती है तो इस हवाले से मजीद जो है वो हुकूमत इक़दामात लेगी ताकि मुल्क को जो है वो तवानाई बहरान से बचाया जा सके। मुल्क को तवानाई बहरान से बचाने के लिए हुकूमत की जानिब से बर वक्त इक़दामात और पेशगी जो है वो फैसले लिए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया मज़हर अब्बास, आप हमें वज़ीर आज़म के कौम के खिताब से हवाले से तफसीलन अपडेट कर रहे थे और तमाम तर हिदायत के हवाले से भी आपने अपडेट किया। आपका बहुत शुक्रिया। अवामी हुकूमत का आवाम दोस्त इकदाम, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बहरान के बावजूद पेट्रोलियम मसनूआत में भारी इजाफे की समरी को एक बार फिर मुस्तरद कर दिया। इस हफ्ते पेट्रोल पर 95 रुपए फी लीटर और डीजल पर 203 रुपए फी लीटर इजाफे की तजवीज़ दी गई थी। रवां हफ्ते 56 अरब रुपए का इजाफी बोझ वफाकी हुकूमत बर्दाश्त करेगी। मुतवातिर 3 हफ्तों में 125 अरब रुपए का तारीखी बोझ वफाकी हुकूमत अवामी फलाह की खातिर बर्दाश्त कर रही है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का कौम से खिताब। दुनिया भर में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफा जारी है। बड़ी बड़ी मईशतें मुआशी बेबसी का सामना कर रही हैं। हुकूमत के बरवक्त इक़दामात से बहरान को सर उठाने नहीं दिया गया। चैलेंजेस का भरपूर मुकाबला कर रहे हैं। हुकूमत को अवामी मसाइल का बखूबी इदराक है। किफ़ायतशारी और बाहमी एतमाद से इस बहरान से सुरखरू निकलेंगे वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। दुनिया मुश्किल तरीन सूरत हाल से नबरदाजमा है। पाकिस्तान 2 महाजों पर अहम किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान दुनिया भर में अमन का ख्वाहां है। खित्ते में क़याम अमन और उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद के लिए पाकिस्तान अपना किरदार अदा कर रहा है। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मुफाहमत के लिए भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और कुवैत के वली अहद शेख सबाल खालिद अल हमद अल मुबारक अल सबा के दरमियान टेलीफोनिक राबता। वज़ीर आज़म का कुवैत पर होने वाले हमलों की मजम्मत का यादा, कुवैती अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती और हिमायत का इजहार। कुवैती वली अहद की जानिब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत और बसीरत की तारीफ। पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए अपना तामीरी किरदार जारी रखेगा। वज़ीर आज़म वज़ीर आज़म की हिदायत पर हुकूमत का रोशन डिजिटल अकाउंट के दायरा कार को वसी करने का फैसला। गैर मुल्की शहरियों, कंपनियों और इदारा जाती सरमायाकारों को रोशन डिजिटल और हुकूमती सिक्योरिटीज समेत नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स में सरमायाकारी की इजाज़त होगी। ये इकदाम मालियाती मंडियों से रवाबित बढ़ाने और डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए गैर मुल्की सरमायाकारी के फ़रोग़ का मज़हर है। बैरून मुल्क मुकीम 1 करोड़ 10 लाख पाकिस्तानी वतन में अपने ख़ानदान और कम्युनिटीज़ की मदद कर रहे हैं। वज़ीर आज़म की वज़ीर ख़जाना, स्टेट बैंक और दीगर शामिल बैंकों को प्रोग्राम की कामयाबी पर मुबारकबाद। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग जी के दरमियान टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मगरबी एशिया की सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू। तमाम तनाज़ात को बातचीत और सिफारतकारी के जरिए हल करने की काविशों पर इत्तफाक। दोनों मुल्कों का मशरिक़ वस्ता में फौरी जंगबंदी और अमन की बहाली पर जोर। चीनी वज़ीर ख़ारजा की जानिब से क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का खैर मकदम। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा बदर अब्दुल्लाती के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं का बदलती हुई इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल, मुज़ाकरात, तहम्मुल और इज्तमाई कोशिशों की अहमियत पर जोर। दोनों रहनुमाओं का करीबी राब्ते में रहने पर इत्तेफाक।
बेहतरीन और मौसर सिफारतकारी पाकिस्तान आलमी अमन का जामिन बनकर उभरा। दुनिया में अमन और इस्तेहकाम के लिए कामयाब सियासी और मिलिट्री डिप्लोमेसी का लोहा मनवाया। अमरीकी नुमाइंदा खसूसी स्टीव विटकोफ ने पाकिस्तान के अहम किरदार पर मोहर जब्त कर दी। पाकिस्तान के जरिए ईरान के साथ मजबूत और मुस्बत पैगामात और मुज़ाकरात सामने आए। स्टीव विटकोफ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान की तवानाई तंसीबात पर हमले मजीद 10 रोज तक रोकने का ऐलान। ईरानी तवानाई तंसीबात पर हमले रोकने की डेडलाइन 6 अप्रैल तक बढ़ा रहा हूं। ईरान से बातचीत बहुत अच्छी चल रही है, अमरीकी सदर ट्रंप। अमरीका और सिहूनी फौज के ईरान पर वहशियाना हमले जारी। कुम में रिहायशी इलाके पर हमले, 18 अफराद शहीद, 10 अफराद जख्मी। ईरानी हिलाल अहमर सोसाइटी अस्फहान में भी रिहायशी इमारतों पर अमरीकी और इसराइली फोर्सेस के हमले, 7 बच्चों और 7 औरतों समेत 26 अफराद शहीद, मुताद्दिद जख्मी। 27 रोजा जंग में 2000 से ज्यादा ईरानी शहीद हो चुके हैं। ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान का तेहरान के बाजारों का दौरा। शेख और अनोश की रसद और तरसील का मुआयना किया। हर सप्लाई सेंटर दुश्मन के खिलाफ जंग का मजबूत मोर्चा है। मार्केट सिक्योरिटी बरकरार रखना और जरूरी अशिया की फराहमी यकीनी बनाना जहाज से कम नहीं। ईरानी सदर की शहरियों के साथ गुफ्तगू। शहरियों की सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान के साथ सेल्फियां। अमरीकी और इसराइली फौजी तनसीबात पर ईरान की पासदाराना इनकलाब के जवाबी मिसाइल और ड्रोन हमले जारी। तेल अवीव में इसराइली फौज के स्पोर्ट एंड लॉजिस्टिक सेंटर को निशाना बनाया गया। कुवैत के मुबारक पोर्ट पर हमले में मुताद्दिद तनसीबात को आग लग गई। अशदूद में तेल के जखीरे, मोडाइन बस्ती में फौजी एहलकारों के मकाम और अमरीकी फौज के मालूमाती तबादला मरकज को निशाना बनाया गया। ऑपरेशन में तवील और दरमियाने फासले के मिसाइल, ठोस और माया ईंधन वाले निजाम, दुरुस्त निशाना लगाने की सलाहियत, कसीर वॉर हेड टेक्नोलॉजी और खुदकुश और घूमने वाले ड्रोन का इस्तेमाल। सिहूनी फौज के लबनान पर फजाई हमलों का सिलसिला जारी। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 22 अफराद जाँ बहक, 110 जख्मी। इसराइली फोर्सेस के ताज़ा फजाई हमलों में जनूबी लबनान के ज़िला सैदा में 4 अफराद जाँ बहक, 8 जख्मी। हौता अल गदीर के इलाके में भी 2 अफराद जाँ बहक। 2 मार्च से जारी इसराइली हमलों के नतीजे में 1100 से ज़ायद अफराद जाँ बहक और 3200 से ज़ायद जख्मी हो चुके। इसराइल के मरकजी अपोजिशन लीडर यायर लापिड और मिलिट्री चीफ अयाल ज़मीर अपनी हुकूमत की गलत पॉलिसियों के खिलाफ फट पड़े। नेतन्याहू ने लेबनान, गजा, शाम और ईरान के खिलाफ बिला जवाज महाज खोले। इसराइली हुकूमत फौज को किसी हिकमत अमली और जरूरी वसाइल के बगैर बहुत कम सिपाहियों के साथ मुतअद्दिद महाजों पर भेज रही है। फौज नफसियाती दबाव के बाद टूट फूट का शिकार है। इसराइली मिलिट्री चीफ शुमाली इसराइल की बस्ती एक रियायत शमोना के मेयर आयुचाई स्ट्रन का भी नेतन्याहू की हुकूमत पर वहां के रिहायशियों के तहफ़्फ़ुज़ में नाकामी का इल्जाम। यूक्रेन और सऊदी अरब के फ़ज़ाई दिफा से मुतालिक मुआहदे पर दस्तखत। दिफाई मुआहदा मुस्तक़बिल के मुआहदों, तकनीकी ताउन और सरमायाकारी की बुनियाद फराहम करेगा। सऊदी अरब के साथ अपनी महारत और निज़ाम शेयर करने और इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ को मजबूत बनाने के लिए मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। सऊदी अरब की भी सलाहियतें यूक्रेन के लिए दिलचस्पी का बायस हैं। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बयान। पाकिस्तानी सियासी क़यादत ने GSP प्लस स्टेटस ख़त्म करवाने की कोशिश को खुली माशी तकरीबकारी करार दे दिया। सियासी मुखालफत में मुल्क की तज़हीक नाकाबिले बर्दाश्त है। एक जमात अपने सियासी मफाद की खातिर मुल्क दुश्मन अनासर के साथ मिलकर साजिशों में मसरूफ़ है। PTI आरिफ अजाकिया के साथ मिलकर मुल्क के खिलाफ साजिशों में शामिल है। PTI ने अपने 4 साल इक़्तिदार में मुल्क को नुकसान पहुँचाने के लिए हर हरबा इख्तियार किया। वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह ताहर। बिजनेस कम्युनिटी ने GSP प्लस स्टेटस का प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। GSP प्लस की मुल्की मईशत के लिए गेम चेंजर है। स्टेटस की तोसी पाकिस्तान की जानिब से आलमी कवानीन की पासदारी का सबूत है। यूरोपीय यूनियन पाकिस्तानी मसनूआत की सबसे बड़ी आलमी मार्केट बन गई। यूरोपीय यूनियन को पाकिस्तानी बरामदात में 10 साल में 108% का बड़ा इजाफा हुआ। GSP प्लस की बदौलत मुल्क में रोजगार के लाखों नए मौके पैदा हुए। हुकूमती इदारे और कारोबारी बरादरी यूरोपीय यूनियन के साथ मुकम्मल हम आहंग है। FPCCI के ओहदेदारों की कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान ने इंसानी हुकूक और लेबर कवानीन समेत 27 आलमी कन्वेंशन पर अमल दरामद यकीनी बनाकर GSP प्लस का दर्जा हासिल किया। कुछ अनासर की यूरोपीय यूनियन के साथ GSP प्लस के खिलाफ अपील काबिल मजम्मत है। मुल्की मईशत की बेहतरी के लिए सियासत से बालातर होकर काम करना होगा। GSP प्लस स्टेटस के खिलाफ होने वाले मनफी प्रोपेगेंडे को मुस्तरद करते हैं। लाहौर में विफाक हाय ईवान सनत और तिजारत के ओहदेदारान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस।
बदलते आलमी मंजरनामे में पाकिस्तान सरमायाकारी और आलमी तिजारत के लिए पुरकशिश मंजिल। पाकिस्तान नेट सिक्योरिटी स्टेबलाइजर के साथ तिजारती मरकज बन गया। कराची, गवादर और पोर्ट कासिम पर सरगर्मियों में तारीखी इजाफा। पाकिस्तान ने ट्रांसशिपमेंट कवायद में तरमीम करके समुद्री और फजाई बंदरगाहों में कार्गो हैंडलिंग की इजाजत दी। मशरक़ वस्ता में कशीदगी से पाकिस्तान के लिए ट्रांसशिपमेंट का मुस्तकिल मरकज बनने का सुनहरी मौका। मजबूत सियासी और इक्तिसादी इस्तेहकाम से सरमायाकारों का एतमाद नई बुलंदियों पर। हुकूमत का बढ़ती जरूरियात के पेश नज़र पाकिस्तान में 3 नई बंदरगाहें बनाने का फैसला। ट्रांसशिपमेंट के लिए साजगार माहौल फराहम किया जा रहा है। वजीर बहरी उमूर जुनेद अनवार और मुशीर खजाना खुर्रम शहजाद ने मुतबादिल की तलाश में दुनिया का पाकिस्तान को ट्रांसशिपमेंट के लिए बेहतरीन मुकाम समझना अहम कामयाबी करार दिया। कराची पोर्ट पर तिजारती तवानाई और ट्रांसशिपमेंट सरगर्मियों में नुमाया इजाफा। पेट्रोल और LPG के 3 बड़े बहरी जहाज़ों की आमद के साथ पोर्ट ऑपरेशंस में तारीखी तेजी। दरामदात मुल्क में ईंधन की सप्लाई लाइन को बरकरार रखने और तवानाई की दस्तयाबी को मुस्तहकम बनाने में अहम किरदार अदा कर रही हैं। कराची पोर्ट पर साल 2025 में 8,300 कंटेनर्स, जबकि गुज़श्ता 24 दिनों में 8,313 कंटेनर्स के बराबर माल पहुंचा। ट्रांसशिपमेंट के फरोग के लिए फीसों में नुमाया कमी। स्कैनिंग चार्जेस में 50% से 75% तक रियायत, बंदरगाही फीस में 60% कमी और टर्मिनल चार्जेस में भी कमी शामिल। भारतीय मुतासिब बदलिया के एक और जानिबदाराना फैसले का शिकार कश्मीरी खवातीन आसिया इंदराबी, फहमीदा सूफी और नाहिदा नसरीन को सजा सुनाने के खिलाफ मुजफ्फराबाद में बड़ा एहतजाजी मुजाहरा। बुरहान वानी चौक से अलमदार चौक तक मुजाहिरीन का मार्च। शुरका की भारतीय हुकूमत और अदालती निज़ाम के खिलाफ शदीद नारेबाजी। मकबूजा कश्मीर के बहन भाइयों के साथ हैं। कश्मीरी अवाम की आवाज़ हर सतह पर मौसर अंदाज में उठाई जाती रहेगी। मुकर्ररीन मकबूजा कश्मीर में मुतादिद कश्मीरी सियासी नजरबंद भारतीय जेलों में मुंतकिल। आलिम दीन और समाजी कारकुन महमूदुल हसन शाह समेत 46 नजरबंद भारतीय रियासतों हरियाणा और उत्तर प्रदेश की जेलों में मुंतकिल। भारतीय जेलों में मुंतकली दरअसल नजरबंदों और उनके अहल खाना को मजीद जहनी अजियत में मुब्तला करने का एक ओछा हथकंडा। बारामूला में काले कानून के तहत मजीद एक कश्मीरी शहरी की जायदाद जब्त। खवातीन रहनुमाओं के खिलाफ भारतीय अदालती फैसला इंसानियत का कत्ल है। कश्मीरी खवातीन रहनुमाओं की तवील सजाएं इंसाफ का कत्ल हैं। हुर्रियत रहनुमा। मशरक़ वस्ता में तूफ़ानी बारिश और यालाबारी से तबाही। बहरा रूम से उठने वाले ताकतवर और कम दबाव वाले सिलसिले से सहराई खित्तों में गैर मामूली सूरत हाल। ओमान में सैलाबी रेलों के नतीजे में मुतादिद अफराद जाँ बहक, दर्जनों ताहाल लापता। मुत्तहिदा अरब अमारात के शहरों दुबई, अबूज़ैबी और रास अल खैमा में शदीद बारिशों के साथ गैर मामूली यालाबारी और तूफ़ानी हवाएं। बाज़ मकामात पर 18 इंच तक औले रिकॉर्ड। ईरान और इराक के सरहदी इलाकों में मूसलाधार बारिशें। पहाड़ी नदी नालों में तुग़यानी। मुकामी इंफ्रास्ट्रक्चर और बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। सऊदी अरब के शिमाली और मगरबी हिस्सों में गरज चमक के साथ तेज बारिशें। सहराई वादियां दरियाओं में तब्दील। ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर। कतर और बहरीन में भी शदीद आंधी और आसमानी बिजली गिरने के वाक़यात। हंगामी हालत नाफिज। ओमान में सैलाबी पानी में घिरे खानदान को बाहिफाजत रेस्क्यू करने वाला पाकिस्तानी नौजवान हीरो बन गया। अरब सोशल मीडिया में अल पाकिस्तानी माफी खौफ यानी पाकिस्तानियों को कोई खौफ नहीं का टॉप ट्रेंड। रेस्क्यू करते हुए पाकिस्तानी नौजवान की वीडियो वायरल। ऊंचा हवा में ज्यादा सफाई से नहीं खेला गया स्ट्रोक और रायली रूसो, ये बॉल ग्राउंड से बाहर जाएगी। कैच हिट की आवाज और थोड़ा सा मिस जज कर गए। लाहौर में पाकिस्तान सुपर लीग 11 कराची किंग्स का कोयटा ग्लैडिएटर्स के 182 रन का हदफ। डेविड वार्नर के 35, साद बे के 30 और मोइन अली के नॉट आउट 48 रन। अहमद दानियाल की 3 और जारी जोसेफ की 2 विकेटें। कोयटा ग्लैडिएटर्स की बैटिंग जारी। मैच PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। Raise your hands for Zalmi. Raise your hands, we take it right back. Raise your hands when we bring them down and now we're rising up, rising up. Raise your hands for Zalmi. Raise your hands, we take it right back. Raise your hands when we पेशावर ज़ल्मी ने PSL 11 के लिए ऑफिशियल तराना राइज ऑफ ज़ल्मी जारी कर दिया। तराने में माहिरा खान, सारा यूसुफ, बाबर आजम, मोहम्मद हारिस समेत दीगर क्रिकेटर्स जलवागर। पेशावर ज़ल्मी 2017 की चैंपियन टीम रह चुकी है।
जोरदार हिट, दिल का शॉट और पहली गेंद। लाहौर कलंदर्स के बैटर फखर जमान ने पीएसएल में अहम संग मील अबूर कर लिया। इवेंट में 3000 रन मुकम्मल, एजाज 98 इनिंग्स में अंजाम दिया। बाबर आजम के अवध फखर जमान पीएसएल में 3000 रन मुकम्मल करने वाले दूसरे प्लेयर हैं। फिर भी फखर के हक में और पीएसएल 11 में शामिल नई फ्रेंचाइज पिंडीज का एलसीसीए ग्राउंड में प्रैक्टिस सेशन। मकामी खिलाड़ियों के अलावा इंग्लिश क्रिकेटर सैम बिलिंग्स और बांग्लादेश के रिशाद हुसैन की भी प्रैक्टिस। मेंटोर इंजमाम उल हक और डायरेक्टर राशिद लतीफ ने खिलाड़ियों के साथ अपना तजुर्बा शेयर किया। पिंडीज की टीम पीएसएल 11 में पहला मैच कल पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ खेलेगी। नाज़रीन, अभी आपको बताते हैं वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और कुवैत के वली अहद शेख सबाल खालिद अहमद अस-सबा के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ। कुवैत के वली अहद की जानिब से मौसूल होने वाली टेलीफोन कॉल पर वज़ीर आज़म ने कुवैत पर होने वाले हमलों की मजम्मत की और इन मुश्किल हालात में कुवैत की आवाम के साथ पाकिस्तान की मुकम्मल यकजहती और हिमायत का इजहार किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कीमती जानों की ज़िया पर दिली अफसोस और ताज़ियत का इजहार करते हुए जख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ की। वज़ीर आज़म ने कुवैती क़यादत को मशरिक़ वस्ता में जंग के खात्मे के लिए पाकिस्तान की मुखलिसाना सिफारती कोशिशों से भी आगाह किया। कुवैत के वली अहद ने वज़ीर आज़म की क़यादत को सराहते हुए ईरान और अमरीका के दरमियान सालिसी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की मुकम्मल हिमायत की। उन्होंने मौजूदा बहरान में कुवैत के साथ पाकिस्तान की हिमायत पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। वली अहद शेख सबाल खालिद अल-हमद अस-सबा ने कुवैती क़यादत के नाम वज़ीर आज़म के इज़हार यकजहती के ख़त पर भी शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की हिदायत पर हुकूमत ने रोशन डिजिटल अकाउंट के दायरा कार को वसी करने का फैसला किया है, जिसमें गैर मुल्की शहरियों, कंपनियों और इदारा जाती सरमायाकारों को रोशन डिजिटल और हुकूमती सिक्योरिटीज समेत नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स में सरमायाकारी की इजाज़त होगी। ये इक़दाम मालियाती मंडियों से रवाबित बढ़ाने और डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए गैर मुल्की सरमायाकारी के फ़रोग़ का मज़हर है। वज़ीर आज़म ने कहा कि रोशन डिजिटल अकाउंट का दायरा कार गैर मुल्की शहरियों, कंपनियों और इदारा जाती सरमायाकारों तक बढ़ाने से पाकिस्तान मुआशी तौर पर मज़ीद मजबूत होगा और मालियाती मंडियों में वसअत आएगी। वज़ीर आज़म ने वज़ीर ख़जाना, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और इस प्रोग्राम में शामिल बैंकों को इस कामयाबी पर मुबारकबाद दी है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि पाकिस्तान सरमायाकारी के लिए तैयार है। हुकूमती इस्लाहात, मजबूत डिजिटल निज़ाम और मालियाती सहूलियात में तोसी के जरिए शफाफ, महफूज और साजगार माहौल फराहम किया जा रहा है। दुनिया भर के सरमायाकार पाकिस्तान में मौजूद मौक़े से फ़ायदा उठाएं और मुल्क के माशी मुस्तक़बिल का हिस्सा बने। दुनिया भर में 1 करोड़ 10 लाख के करीब बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी कम्यूनिटी दुनिया की बड़ी और मुतहर्रिक कम्यूनिटीज़ में शामिल है। मशरिक़ वस्ता, यूरोप, शिमाली अमरीका और मशरिक़ बईद में मुकीम पाकिस्तानी मेज़बान मईशतों में किरदार अदा करते हुए वतन में अपने ख़ानदानों और कम्यूनिटीज़ की मदद कर रहे हैं और मुल्क की मईशत की मजबूती का जरिया है। स्टेट बैंक के मुताबिक माली साल 2025 में तरसीलात ज़र 38.3 अरब डॉलर से बढ़ गई, जो गुज़िश्ता साल से 26.6% ज़्यादा हैं। नाज़रीन, भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में काबिज़ इंतज़ामिया ने 3 दर्जन से ज़ायद कश्मीरी सियासी नज़रबंदों को मकबूजा इलाके से दूर दराज की भारतीय जेलों में मुंतकिल कर दिया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक आलिम दीन और समाजी कारकुन महमूद उल हसन शाह समेत 46 नज़रबंदों को श्रीनगर सेंट्रल जेल, कोट बहलवाल जेल, जम्मू, राजौरी, पूंछ, अजला की जेलों समेत मुतादिद हिरासती मराकज़ से भारतीय रियासतों हरियाणा और उत्तर प्रदेश की जेलों में मुंतकिल किया गया। नज़रबंदों की सैकड़ों मील दूर भारतीय जेलों में मुंतकिली दरअसल उन्हें और उनके अहल खाना को मजीद जहनी अजियत में मुब्तला करने का एक हथकंडा है। नई दिल्ली के मुसल्लत कदर लेफ्टिनेंट गवर्नर के मातहत काबिज़ इंतज़ामिया ने कश्मीरी के इमलाक की जब्तगी का सिलसिला जारी रखते हुए ज़िला बारामूला में मजीद एक कश्मीरी की जायदाद जब्त कर ली। भारतीय पुलिस ने इंतज़ामिया के हुक्म पर ज़िला के इलाके रफ़ियाबाद में खुर्शीदाबाद की एक कनाल और 12 मरले से ज़ायद राशि काले कानून यूपीए के तहत जब्त की। तहरीक हुर्रियत जम्मू कश्मीर ने मारूफ आज़ादी पसंद खातून रहनुमा आसिया अंद्राबी और उनकी साथियों फहमीदा सूफ़ी और नाहिदा नसरीन की तवील सज़ाओं की शदीद मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि आसिया अंद्राबी कश्मीरियों की उमंगों की तर्जमान है, जिस पर उन्हें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आज़ाद कश्मीर शाख ने बदनाम ज़माना भारतीय तहकीकाती इदारे NIA की खुसूसी अदालत के हालिया मुतासिबाना फैसले की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि आसिया अंद्राबी और उनकी साथियों को दी जाने वाली सज़ा इंसाफ का कत्ल है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के कन्वीनर गुलाम मोहम्मद सफ़ी ने कहा कि भारत कश्मीरी क़यादत की मुसलसल पाबंद सलासत रखकर उनके अज़्म को हरगिज़ तोड़ नहीं सकता। कश्मीरी आज़ादी पसंद क़यादत के हवाले से मुतासिबाना फैसले भारतीय अदलिया पर एक स्याह धब्बा हैं।
नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार और चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। अपने एक्स पर बयान में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा है कि चीन के वज़ीर ख़ारजा के साथ मगरबी एशिया की सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू हुई। उन्होंने कहा कि तमाम तनाज़ात को बातचीत और सफारतकारी के जरिए हल करने की काविशों पर इत्तफाक किया गया। दौरान गुफ्तगू मशरिक़ वस्ती में फौरी जंगबंदी और अमन की बहाली पर जोर दिया गया। चीन के वज़ीर ख़ारजा की जानिब से क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का खैर मकदम किया गया। नाज़रीन, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर बदर अब्दुल्लाती के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने ख़ित्ते की बदलती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया और अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए मुकालमे, तहम्मुल और मुश्तरका कोशिशों की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने अमन और खुशहाली के फ़रोग़ के लिए तमाम कोशिशों की हिमायत जारी रखने का आज़म का भी इआदा किया। दोनों रहनुमाओं ने करीबी राब्ते में रहने पर इत्तेफाक किया। इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।